चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर द क्लास हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो this is a continuation of yesterday's class. Okay, canal design. Which canal? Lined canal. Okay, so as I said, there are two types of the canal, lined canal. Okay, one is a triangular cross section. Canal design means what? We have to design this cross section. What should be the breadth? What should be the perimeter? What should be the area? Okay, cross sectional area. These are the main parameters that we need to design. So in line canal there are two types of cross section depending upon the discharge. Okay, if your discharge value it lies between 150 qmax. Qmax means what? डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो क्यूमेक्स इज, हम लोग क्यूमेक्स को हम बोल सकते हैं ये जो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. इफ इट इज लेस देन 150 देन इट विल बी triangular okay, and if it is greater than 150 qmax then we have to go for the design for trapezoidal cross section. Okay, and the bottom should be, in both the case it should be rounded, it should not be like this pointed. Okay, rounded. So basically triangle comprises of what? Straight line, circular arc, then again straight line. Similarly in trapezoidal what happened? Straight line, some small arc, circular arc, rounded. Okay, then again straight, again circular, then straight line. We have already derived the formulas. Okay, yesterday we have already derived the formula of area. Okay, and formula of perimeter. Perimeter means what? Weighted perimeter. Okay, the perimeter which is within the, under the water surface, that perimeter we need to design. Okay, if we know the value of area and if we know the value of perimeter, we can easily calculate hydraulic mean depth, or it sometimes it is said hydraulic radius. Okay, which is denoted by r, and it is equals to a by p. Now let us go to the design. Okay, so triangular cross sectional. See, this is the triangular cross section. Okay, as I said, straight line, circular arc, then again straight line. Okay, and please remember while construction what happens when this circular arc, ये circular arc जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ से straight line start होता है, this line is what? This is nothing but the radius. Okay, radius of the circular arc, and this radius is nothing but the depth. जो भी डेप्थ है वाटर लेवल का फ्रॉम द बॉटम, जो भी है तुम्हारा डिस्टेंस, दैट इज डेप्थ. ओके, सो ये वाला भी वही डेप्थ है. अगर ये आर्क है तो ये y होने से दिस इज ऑल्सो y. दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस ऑफ दिस आर्क. ओके, सो ये y है, ये भी y ही रहेगा. सो वाइल कंस्ट्रक्शन क्या मेंटेन करना है? दिस रेडियस शुड फॉर्म 90 डिग्री विद दिस स्ट्रेट लाइन इन बोथ दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये वाला मेंटेन करना है construction. So, and what are the formulas that we have derived? किसी को याद है फॉर्मूला क्या क्या था? See, this is 90 degree. As I said, this angle will be theta. This is also theta. Okay, if this is theta, then this will be your, this is 90 degree. This angle is your 90 minus theta. So this angle will be theta. तो ये दोनों ट्राइंगल सेम है. ये दोनों देखो, दिस इज नथिंग बट दिस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. एक एरिया ट्राइंगल है, फिर एक सेक्टर है. ठीक है, जो भी है सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर है, फिर तुम्हारा ये वाला क्या है? ट्राइंगल है. ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो इन दोनों का एरिया विल बी सेम. ओके, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम. तो देखो, इफ दिस एंगल इज सेम, See, this angle will be same. ठीक है, तो अगर इसका स्लोप तुमको दिया है विच इज
वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, अगर ऐसा एंगल दिया है, मतलब स्लोप का तुमको वैल्यू देता है ना, साइड स्लोप का वैल्यू सपोज 1.2:1 ऐसा अगर बोल देता है, ठीक है। सो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं ये थीटा का वैल्यू, इफ वी नो दिस वर्टिकल एंड इफ वी नो दिस हॉरिजॉन्टल डाटा, ठीक है। ये वाला का वैल्यू, ये वाला वैल्यू अगर पता चलेगा तो थीटा हमको निकल आएगा। ओके, हाउ, सी दिस एंगल, ये दोनों लाइन क्या है, दिस इज पैरेलल लाइन, ठीक है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। सो दिस इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। अब ये वाला ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल फॉर्म, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, जिसका ये वाला का एंगल है थीटा, ठीक है। So using this triangle and these three values, we can easily calculate the value of theta, ठीक है। तो क्या क्या थीटा आएगा, प्लीज रिमेम्बर whenever we are using theta that is in radian, okay, ये सब थीटा का वैल्यू नॉट इन डिग्री, इट शुड बी इन रेडियन, ओके, फॉर्मूलाज में। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, फ्रॉम दिस ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, सो v by h। तो सिमिलरली cot थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/tan थीटा विच इज नथिंग बट दी h by v, उल्टा, ओके। एंड वी हैव ऑलरेडी डिराइव द फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर दिए हैं कल ही, तुम लोग देख सकते हो कल के क्लास में, ओके, वीडियो में या लेक्चर नोट्स में, हाउ वी हैव डिराइव दिस फॉर्मूला, ओके। सो इफ वी नो दिस, ये वाला रेशियो अगर हमको पता रहेगा, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल रेशियो, इफ वी नो, we can easily calculate cot theta, okay, and we can also calculate theta value, ठीक है। theta is what, tan inverse of vertical by h, okay, so theta भी पता है, cot theta भी पता है, okay, so ये वाला तुम्हारा एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, this is the perimeter of the triangular cross section, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब दूसरा लास्ट में क्या निकालने के लिए बोलेगा, हाइड्रोलिक रेडियस विच इज नथिंग बट द आर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी अगर बोल सकते हैं, विच इज एरिया बाय वेटेड पैरामीटर, ओके। सो एरिया बाय वेटेड पैरामीटर, और डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। So these are the formulas for the triangular cross section। अगर ये वाला याद रख पाओगे तो ट्रापेजॉइडल का कुछ नहीं है, सिंपल एक एक टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर दोस एक्स्ट्रा टर्म्स। ये वाला देखो, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर में क्या हो रहा है, स्ट्रेट, सॉरी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, आर्क, स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ लेट अस गो टू द ट्रापेजॉइडल। ट्रापेजॉइडल में क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रेट लाइन, आर्क, अब यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर दिया है, ठीक है, और फिर से एक आर्क, और फिर से तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। सो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया तुम्हारा ट्रायंगल का ही है, ट्रायंगल का जो था सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा एरिया कौन सा आ रहा है, ये बीच वाला, देखो सेम है, ये वाला देखो, स्ट्रेट आर्क, ये हाफ इस तरफ है, फिर आर्क स्ट्रेट, ये वाला एरिया इस तरफ है, ठीक है। इसको थोड़ा काट के, यहाँ से काट के थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है, और बीच में क्या लगा दो, और एक एरिया लगा दो ट्रापेजॉइडल के लिए, जिसका एरिया क्या है, b इंटू वाई। तो इसका ट्रायंगल का जो भी एरिया है, व्हाट इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या हो जाएगा इन ट्रापेजॉइडल, दिस इज द एरिया फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ट्रापेजॉइडल में एक्स्ट्रा एरिया क्या ऐड हो जाएगा, एक इनके बीच में एक रेक्टेंगल एरिया आ रहा है जिसका, यस, b इंटू वाई, ओके, देखो b इंटू वाई, ठीक है, वही है, ये सब सेम है। देखो एरिया में क्या आ रहा है, देखो b इंटू वाई एड हो रहा है, ठीक है। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या बोले थे, ये है वेटेड पेरीमीटर, द लाइन, द सरफेस विच इज अंडर द वाटर, उसका लेंथ कितना है, दैट इज द पेरीमीटर, ओके। सो ये है तुम्हारा y cot थीटा, दिस इज y इंटू 2 थीटा, अगेन दिस इज y cot थीटा, ठीक है। हम बोले थे इसमें भी सेम है, उसका भी ट्रापेजॉइडल का भी सेम पेरीमीटर रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा और एक लेंथ ऐड हो जाएगा। ये डायग्राम देख के बोलो क्या लेंथ ऐड हो रहा है, तो पेरीमीटर विल बी व्हाट, जो ट्रायंगल का जो भी था, ठीक है, y cot थीटा, यहाँ पे y थीटा, वहाँ ये दोनों मिलाकर 2y थीटा था, तो ये y थीटा हो गया, एंड अगेन दिस इज y cot थीटा। तो एक्स्ट्रा लेंथ क्या आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, ओके। तो सी यहाँ पे प्लस b आ रहा है, ओके। तो पिछले उसमें क्या था, ट्रायंगल में सिर्फ ये वाला था, ट्रापेजॉइडल में प्लस b आ जाएगा। क्लियर है ये वाला। सो पेरीमीटर भी पता है, एरिया पता है, सो हाइड्रोलिक रेडियस इज अगेन एरिया बाय पेरीमीटर, विच इज नथिंग बट दोनों का रेशियो कर दो, ठीक है। नाउ
Let us solve the problem. These are the formula we must keep into mind. Okay, you can note it down. ये note करके रखो अभी. देखो tan थीटा इज नथिंग बट, ये अगर स्लोप स्लाइड स्लोप पता है तो tan थीटा पता चल जाएगा, tan थीटा पता है तो थीटा पता चल जाएगा. ठीक है, फिर थीटा से उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. देन अगेन cot थीटा इज नथिंग बट अगेन h/v. ठीक है, एरिया का ये फॉर्मूला है, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, and radius is equals to a by p. Okay, everyone please note down this formula. ट्रायंगल का क्या होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, बस बी वाई नहीं होगा, बी नहीं होगा, बाकी सब सेम है. ओके, हैव यू नोटेड डाउन? shall I proceed? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ इसमें इन सब के अलावा भी वी विल यूज वन मोर इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी. ओके, वो क्या है तुम्हारा मीन वेलोसिटी. हम बोले थे देयर आर मेनी मेथड, चेजिस मेथड, कटर्स इक्वेशंस मेथड. ठीक है, मैनिंग्स मेथड है, एंड दिस इज योर मैनिंग्स मेथड. ओके, सो मैनिंग्स मेथड में क्या क्या है, देखो v इज इक्वल्स टू 1 by n r to the power 2 by 3 s is 1 by 2. n क्या है, मैनिंग्स इक्वेशन यूज करें, सो दिस इज मैनिंग्स कोफिशिएंट. ओके, इसको मैनिंग्स कोफिशिएंट भी बोलते हैं. इफ नॉट गिवन एज्यूम इट एज 0.015. ओके, अगर नहीं दिया रहता है तो इसको एज्यूम कर लो 0.015. ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मीन वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं. अगर ये वाला भी अगर तुमको नहीं दिया रहता है तो इसको भी एज्यूम कर सकते हो 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इफ नॉट प्रोवाइडेड. नाउ बचा क्या, r इज नथिंग बट द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस व्हिच इज a by p. s यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्लोप बट दिस इज नॉट दिस साइड स्लोप. ये जो साइड स्लोप दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट दैट स्लोप. ओके, ये वाला कौन सा स्लोप है, ये वाला है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है. मतलब सपोज यहाँ पे एक जगह है, कैनल ऐसे स्ट्रेट होके यहाँ से इस जगह पे जा रहा है. ठीक है, तो किस स्लोप में ये, आइदर इट इज, जनरली क्या होता है, इट शुड बी नेगेटिव स्लोप, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप. ठीक है, सो जिसको बोल सकते हैं बेड स्लोप भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये सब तुमको दे विल बी प्रोवाइडिंग यू. ओके, तो ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला भी नोट डाउन करो, मैनिंग्स इक्वेशन का, मैनिंग्स फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मैनिंग्स कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं. ओके, 1 by n r to the power 2 by 3 s to the power 1 by 2. डन? हाँ मैम. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, देखो क्या दिया है, डिजाइन लाइंड इरिगेशन कैनल. ठीक है, फॉर क्या बोला है, फॉलोइंग डाटा. ओके, क्या क्या डाटा दिया है, देखो डिस्चार्ज दिया है, बेड स्लोप, सो दिस इज योर एस, कैपिटल एस. ओके, सी साइड स्लोप दिया है h इज टू v, मतलब हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का साइड स्लोप दे दिया है. ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शन का जो स्लोप है. ओके, तो और ये वाला किस चीज का स्लोप है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का स्लोप. ओके, तो मैनिंग्स कोफिशिएंट 0.014, अगर नहीं देता है तो 0.15 पकड़ना पड़ता है, 0.015. लिमिटिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, नॉट गिवन. इफ नॉट गिवन एज्यूम इट एज 1.5 मीटर पर सेकेंड. So these are the data that have been provided to you. Okay. Now tell me, ये trapezoidal section होगा ना कि triangular section? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट डिस्चार्ज. ट्रापेजॉइडल होगा मैम. Yes, trapezoidal which is greater than 150 qmax, right? अगर लेस देन होता तो हम लोग ट्रायंगुलर डिजाइन करते हैं. सो ट्रापेजॉइडल सेक्शन करेंगे. ओके, तो ट्रापेजॉइडल सेक्शन का तो सबसे पहले तुम क्या निकालो, देखो क्या क्या दिया गया है. मैनिंग्स दिया है, कोफिशिएंट n दिया है. ठीक है, तुम्हारा और वेलोसिटी दिया है. ठीक है, और बेड स्लोप भी दिया है. सो हम लोग वी विल यूज, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. सो r का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन. ठीक है, क्या क्या दिया गया है, v दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, n कोफिशिएंट इज गिवन 0.014. ठीक है, और क्या चाहिए थे यहाँ पे, s चाहिए, s इज 1 by 5000. ओके, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v.
कितना आएगा, सॉरी v नहीं, क्या निकालना है हमको, r निकालना, v आर नोन, तो बिलोगे। हाँ हाँ r v गिवन, n गिवन, s गिवन, कैलकुलेट r। तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे जो है, ठीक है, तो करके r कितना आएगा देखो तो, मैम 2.8। 2.8, ओके, सो अप्रोक्स 2.8, ठीक है, 2.8 लेकर करो, ठीक है, सो r इज कमिंग आउट टू बी 2.8, ठीक है, एंड और क्या क्या चाहिए हमको, अब एरिया चाहिए, ठीक है, r निकल आया, एरिया चाहिए और पेरीमीटर चाहिए ना, यूजिंग दोस टू इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या कह दिया है, एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये दो इक्वेशन से दो अननोन निकालना पड़ेगा, दो अननोन है, क्या क्या अननोन है देखो, y इज व्हाट, डेप्थ कितना होना चाहिए, और b इज व्हाट, ये ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है, और ये थीटा तो निकल ही आएगा तुम लोग का, इससे ये स्लोप से थीटा ये सब आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला के डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, y चाहिए, अगेन इस वाले डिस्टेंस के लिए y चाहिए, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, y और b कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। तो इसके लिए क्या चाहिए, पहले एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, ओके, व्हाट आर गिवन डाटा। अब एरिया निकल आएगा, कैसे निकल आएगा बोलो, इस वाले से ये जो भी डाटा दिया गया है इसमें से कैन वी कैलकुलेट एरिया, एरिया निकल आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी एक चैनल का क्रॉस सेक्शन निकालना। Yes, we know that discharge is equals to velocity into cross section area, ठीक है, वेलोसिटी भी पता है, डिस्चार्ज भी पता है, दैट इज q भी पता है, सो इक्वेशंस में डाल दो q इक्वल्स टू v इनटू a, सो a इक्वल्स टू क्या है, q बाई v, ठीक है, तो करके तुम्हारा एरिया भी निकल आएगा, लेकिन उससे पहले थीटा निकाल के रख दो, ठीक है, थीटा क्या है देखो, थीटा इज योर वर्टिकल बाई, थीटा इज व्हाट, tan है तुम्हारा वर्टिकल बाय h, थीटा इज योर h बाय वर्टिकल, ठीक है, सो cot थीटा कितना आ जाएगा देखो, cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाय वर्टिकल, राइट, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना बोले थे हम लोग 1.5, हॉरिजॉन्टल है तुम्हारा 1.5 और वर्टिकल है 1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है देखो, ठीक है, 1.5 1, सो तुम्हारा पुट करने से cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में cot थीटा भी है, राइट, सो cot theta is 1.5, okay, and we know that tan क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, so 1 by 1.5 मतलब vertical by h, 1 by 1.5, इसको सॉल्व करके थीटा कितना आएगा निकालो, डिग्री में पहले निकालो फिर रेडियन में निकालो, कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर या सिंपली उसको 180 by पाई से भी कर सकते हो, मतलब 180 डिग्री मतलब है पाई रेडियन, तो जो भी यहाँ पे आएगा उतना डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन निकालना है, सो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले थीटा निकालो, थीटा डिग्री में कितना आएगा निकालो, 0.58 रेडियन, 1 बाई 1.5, हाँ 0.58 रेडियन, ठीक है, थीटा देखो सॉल्व करने से क्या आ रहा है, tan इनवर्स 1 बाई 1.5 आएगा देखो 33.66, इसको सिंपल तुम मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री है तुम्हारा पाई रेडियन, तो 3.36 कितना होगा, सिंपल वही होगा पाई बाई 180 इंटू 33.66, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.587 रेडियन, एंड वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू क्या था, q बाई v, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, q है तुम्हारा 350, v है 2 मीटर, तो आएगा इतना मीटर स्क्वायर है, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a, ओके, यू नो द वैल्यू ऑफ r ऑल्सो, r का वैल्यू कितना आया था 2.8 मीटर, देखो r का वैल्यू 2.8 है, अगेन वी नो दैट r a और p का रिलेशन है, r इज a बाई p, मतलब रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस इज एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से a पता है, r पता है, तो p का वैल्यू निकालो, तो दिस इज a, r इज इक्वल्स टू है तुम्हारा 2.878, व्हाट इज p वैल्यू, 62.94, तो 62.94 मीटर इज द वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, अब देखो you got the value of a, you got the value of p,
एंड वी ऑल्सो नो फॉर ट्रेपेजोइडल सेक्शन एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है वो भी हमको पता है, ठीक है। सो दो इक्वेशन, तो वहां पे भी दो अननोन क्या है, y एंड b आर द टू अननोन्स, ओके। तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया का इक्वेशन है, ये वाला पेरीमीटर का इक्वेशन है, ठीक है। कॉट थीटा हमको कितना मिला था 1.5 और तुम्हारा थीटा ही कितना आ रहा था 0.587 रेडियन। तो पुट कर दो दोनों इक्वेशन में, तो ये एक इक्वेशन आएगा, एरिया वी नो, एरिया इज तुम्हारा 175, पेरीमीटर आया था 62.9, ठीक है। जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, देखो दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन में दो अननोन है, y b है, यहाँ पे भी y b, ठीक है। तो अब इसको देखो, इस वाले को सॉल्व करके हम लोग b विथ रेस्पेक्ट टू y एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो तो b इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन आ रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब जो b है उसके जगह पर ये वाला बिठा देंगे, तो देखो b के जगह पर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा के जगह पर 1.5, थीटा 0.57, बी के जगह पर ये वाला। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा क्या इक्वेशन आएगा, लास्ट इक्वेशन क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, देखो y स्क्वायर है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो निकालो। ये वाला आ रहा है, ক্যালকুলেট করবে 1.5 প্লাস 0.587 হচ্ছে এটা, এ তো মাইনাস এটা হচ্ছে, ऐसे कि 27.03 हम কিছু देखो तो दिस इज द इक्वेशन, ओके। अब इसको तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला आया था हम लोग का, श्रीधराचार्य का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे x क्या है, x इज द अननोन विच इज y, ठीक है। ये a, ये b, ये c है, सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें। b के जगह पर आएगा 62.9 माइनस 62.9, a के जगह पर आएगा 2.807, c के जगह पर आएगा 175, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो दो इक्वेशन आएगा, y का दो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग, तो 62.9 प्लस दिस वन, 62.9 माइनस दिस वन, ओके करके देखो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो जनरली डेप्थ इतना ज्यादा नहीं होता है हम लोग का, ठीक है। सो टेक दिस वैल्यू, ओके 3.1 वाला वैल्यू। अब ये वाला y का वैल्यू पुट करके তুমি কি বললে 27, यस मैम তার জন্য বলছিলাম শ্রীধরাচার্য দিয়ে করতে পারো, বা ঠিক আছে ডাইরেক্ট করলে একটাই তো ভ্যালু শো করবে, राइट। तो टेक दिस वैल्यू y इक्वल्स टू 3.1, अब कहाँ पे पुट करेंगे, वी विल पुट दैट इक्वेशन, दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, मतलब b विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा ना, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, मैम 50 আসবে 50, अप्रोक्सीमेटली 50, ठीक है। सो तो क्या क्या आ गया हम लोग का, a आ गया, p आ गया, r आ गया, y आ गया, b आ गया। सो दिस आर द पैरामीटर्स, वही है तुम लोग को डिजाइन करना फॉर लाइन कैनल्स, ओके। सो गिवन पैरामीटर्स आर दिस वन, करस्पॉन्डिंग इन लोग का हमको डिजाइन पैरामीटर्स क्या आया, सो दिस आर द डिजाइन पैरामीटर्स, ओके, r a p y b। क्लियर, क्लियर। হ্যাঁ ম্যাম। So let us solve same type of problem, okay, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही हम दे रहे हैं लेकिन डाटा चेंज करके। तो ये लोग तुम खुद सॉल्व करो, तुम लोग अभी कॉपी में सॉल्व करो। दिस इज द क्वेश्चन, हमको बोलो आंसर क्या क्या आ रहा है वन बाय वन। Everyone please solve the problem. See, design the line canal for discharge 180 cumecs, ठीक है। बेड स्लोप वहां पे पहले 1:500 था, यहाँ पे 250 दिया, ठीक है। साइड स्लोप h/v ये है, ठीक है। मैनिंग्स कोफिशिएंट ये दिया है 0.013, अगर नहीं तो 0.015 पकड़ना है। लिमिटिंग वेलोसिटी सेम 2 मीटर पर सेकेंड, इफ नॉट assume it as if not given assume it as 1.5 मीटर। so these are the given, okay। now tell me trapezoidal होगा ना triangular होगा,
ट्रापेजॉइडल मैम। ट्रापेजॉइडल, ओके, वेरी गुड। ये डाटा तुम लोग लिख लो अभी। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है इनलाइन कैनल डिजाइन? आर बेर करते हैं मैम, आर। हाँ, आर बार करो, ठीक है। तो आर कितना आएगा निकालो। मैम 1.48। अच्छा, बाकी देर देखो ये मैम वाला 1.482। 482, ওকে, বাকি দেরও বলো। এখানে চ্যাট সেকশনে লেখো তো দেখি। ম্যাম 34 একটু জন। আস্তে আস্তে করবেন কারণ লিখতে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আস্তে আস্তেই তো বলছি, তা তোমরাই তো তাড়াতাড়ি সলভ করে দিচ্ছ, বাকিরা তো কেউ কিছু করছে না। টেক ইউর টাইম, অনেক টাইম আছে। আচ্ছা, নীলাদ্রি 1.47, মঞ্জিমা 1.48, ভেরি গুড। হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার্স? রুকসার, তনুশ্রী, সৌভিক মাইতি 1.4, রাজার 1.39। কি কি ভ্যালু পুট করেছো রাজা? ম্যাম 1.48 আসছে। হ্যাঁ, রাজা তো 1.39 এলো, হাও? ঠিক আছে, ত্রিনাঞ্জনের 1.48। রাজাটা কি হলো, গন্ডগোল করলে কোথায় একটা ভ্যালুস গুলো देखो, s is 1/2500, ठीक है। n is 0.013, v is 2 मीटर पर सेकेंड। अब पुट करो राजा, पुट करके देखो देखो कितना आ रहा है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अदर स्टूडेंट? तो 1.48 इतना है, ओके, वेरी गुड। ম্যাম এবার cot থিটাটা বের করেছি। yes, now what is the cot theta? h is how much? v तो 1.25 1.25 है। cot थीटा क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर, सो cot थीटा इज 1.25 by 1 which is 1.25, ठीक है। now tan will be what? 1 by 1.25, tan theta is 1 by 1.25, तो थीटा कितना आएगा निकालो। इन डिग्री कितना आ रहा है, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? जस्ट ম্যাম থিটা আসবে 38.5 38.6 ডিগ্রি। আচ্ছা, লেট আস সি হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার্স। দেখো কত আসছে, বাকিদের বলো থিটা। হ্যাঁ ম্যাম 38.65। मैम 0.67 रेडियन। 38.65 डिग्री। अब उसको ग्रेडियन से कन्वर्ट करना है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट विथ पाई बाय 180। अच्छा, वेरी गुड मनिरुल शेख 0.67। हाँ, बाकी देर सौभिक माइती, गुड गुड। এই শুভজিৎ দত্ত, হ্যাঁ ও তুমি দিয়েছো আনসার, ভেরি গুড। আচ্ছা, অরিন্দম দিয়েছে, প্রীতম ঘোষ দিয়েছে, ভেরি গুড, 6-7। আচ্ছা রাজা, তোমার ডিড ইউ গেট দ্য কারেক্ট আনসার ফর আর? ওকে, now you got the value of theta in radian, okay. Now what is the next step? Calculate a and p. For a, what we need? For a we need q value and we need v value. Q is given, it is 180 q max, okay, and v is your 2 meter per second. So calculate what is a, q by v, ম্যাম which is 90 আসবে। 90, 180 by 2 which is 90, ठीक है। আর And ম্যাম you want আরটা আর পি r, আসবে হচ্ছে 60.7। yes, see, you know the value of r, now you have calculated the value of a also, so simple, p will be what, we know r equals to a by p, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा? a by r करके निकालो कितना आ रहा है। ओके, वेरी गुड आमिर। तो q आ रहा है देखो
A आ रहा है 90 मीटर स्क्वायर, P इज कमिंग आउट टू बी, वी नो R इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आया था, R कितना आया था भूल गया, 90 by 1.48, हाँ 90 by 1.48, so 60.73, is it okay, correct, सबका आ रहा है, 60.81, Yes, ma'am. 60.3, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सिंपल, इसके बाद क्या करना है, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ पी, नाउ put substitute, you know the value of theta and also you know the value of cot theta, now substitute those values in your equation of trapezoidal equation जो भी है for area and for perimeter, okay, so area and perimeter का formula क्या था, okay, I will give you, okay, so this was the formula, देखो ये formula है area का perimeter का, okay, तो तुम लोग नोट डाउन करके यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, area is y square cot theta plus by, perimeter is 2y cot theta plus b, देखो एरिया हमको पता है 90, पेरीमीटर 60 पॉइंट समथिंग है, cot theta 1.25, थीटा इज 0.67, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, दो इक्वेशन आएगा, ठीक है, आने के बाद यस और नो में बोलो, इक्वेशन तुम लोग किए निकाले कि नहीं निकाले, ठीक है, जस्ट टेल यस और नो, नो नीड टू राइट द इक्वेशन, ओके, इक्वेशन बार करेছো, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, हाँ मैम। okay, so let us see what are the equations, तो ये दो इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया, अब b का निकालो विथ रेस्पेक्ट, यहाँ पे क्या है b और y का रिलेशन आ जाएगा एक, ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन b एंड y, ये वाला आ रहा है सबका, यस और नो, ठीक है, now substitute this b value here in this equation, okay, तो substitute कर दो, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद टाइम लो, टाइम लेके तुम लोग जो लास्ट में इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर का सम का, उसका हमको इक्वेशन बोलो सिर्फ, ठीक है, लास्ट में जो आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद समथिंग y स्क्वायर प्लस समथिंग y प्लस माइनस समथिंग इक्वल्स टू 0, যাদের মাইক আছে অন তারা রিড আউট করতে পারো কোশ্চেনটা, ওকে, ये क्या आ रहा है, हाँ मैम, इससे কি ইকুয়েশন এসেছে, 1.92 y square minus 60.73 y plus 90 equal to 0. ठीक है, नाउ दिस इज हाँ मैम, it is. हाँ वेरी गुड, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाई सबका आ गया, तो हाँ मैम इससे ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, देखो तुम लोग कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो या इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला में भी सॉल्व कर सकते हो, ओके, कैलकुलेटर में देखो एक ही डाटा आएगा, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं भी हो सकता है, सो इट्स बेटर टू सॉल्व बाय श्रीधराचार्य, ओके, 1.55 है, देखो y स्क्वायर ये है a स्क्वायर ax स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस by bx प्लस c, अगर ऐसा हुआ तो ये x होगा, ये a ये b ये c यहाँ पे पुट कर देना, श्रीधराचार्य का ये फॉर्मूला है, देखो पुट कर दिया, ठीक है, करने के बाद ये इक्वेशन आएगा, ओके, मैम अब y बोलो। আসছে 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ओके, ये करने के बाद हमको बोलो किस किस का क्या क्या आ रहा है, y का वैल्यू यहाँ पे 1.55 है जैसे में 1.55, अच्छा, बाकी देख, बाकी लोगों का
y का क्या इक्वेशन आएगा? देखो दो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन में दो आंसर आएगा, लेकिन वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट वन, ओके? जो इतना वेरी ह्यूज एक वैल्यू आएगा वो नहीं लेना। वन 1.57 मंजी मैम, अच्छा। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा क्या? क्या पता है? माइनस, हाँ, माइनस बी मैम प्लस माइनस बीटा, मैम बी 54.7। 54.7, okay. What about the others? 1.57, very good. Y का वैल्यू आ रहा है 1.57, सुब्रत पाल का आया, तनुश्री का वो 6 पकड़ लिया, 1.6, ओके। मतलब इट विल बी समवेयर 1.55 ऐसा कुछ में आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे 1.56, एक आ रहा 30, ये नहीं लेना है, ये वाला लेना है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, ठीक है, ये वाला को लेकर सब्स्टिट्यूट करके कौन सा थर्ड इक्वेशन में जो b और y का डिलेशन है करके उसमें देखो 54.74 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये कैलकुलेट करके तुम लोग चेक कर सकते हो। सो व्हाट आर द डाटाज? सो डाटाज आर दिस वन गिवन डाटा एंड आफ्टर कैलकुलेशन these are the parameters that we have designed, okay? रेडियस आ गया, एरिया p y d, क्लियर? थर्टी की এসেছে মনোরল से 30 तक की, 30 বেশি বড় हो जाए, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ओके? इसलिए हम बोल रहे थे कैलकुलेटर नहीं करके तुम लोग वो करो, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य यूज कर, कैलकुलेटर में एक ही आंसर आएगा, ओके? तो इट्स बेटर टू यूज श्रीधराचार्य, ओके? देखो मेरा भी श्रीधराचार्य में दो वैल्यू आया है, देखो देखो एक 30 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तुम्हारा डेप्थ इतना बड़ा कैनल होता है, कभी 30 मीटर डेप्थ वाला तो नहीं होगा ना। हम लोग तो रहते बोले थे कितना डेप्थ होना चाहिए, 1 to 2 के बीच में होना चाहिए योर डेप्थ, ओके? 1 मीटर से 2 मीटर, तो इतना नहीं होगा, ये 30 मीटर नहीं होगा, ओके? आई थिंक क्लियर। मनीरुल शेख, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सी दो इक्वेशन है, ये प्लस माइनस, प्लस से ये वाला आ रहा है, माइनस से ये वाला, तो ये वाला लेना है, ओके? ओके देन दिस मच फॉर टुडे, आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके? तो इफ यू वांट आई कैन गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके? वेट अ सेकेंड, लेट मी टेक द अटेंडेंस। वाह, आज तो अच्छा अटेंडेंस है, ठीक है, ठीक है। अभी तुम्हारा ये 11:50 तक है ना, 44 तो हो चुका है, सो 11:50 या 11 मतलब मैक्सिमम 12 बजे के कितने क्लास है? 11:55 ना, ओके? 11:55 में आ जाना है मैक्सिमम, ओके उससे मैम। ज्यादा लेट मत करना, ओके? Okay, ma'am. ओके, ম্যাম এখন তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছি, আবার हाँ আসবো। हाँ हाँ।